students. Today we are going to start History chapter 10, Contribution of Madhya Pradesh in the Freedom Struggle. मैं आज आपको हिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैप रीडिंग वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है कि आपको वो चैप्टर समझ में आ गया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। Today we will discuss these topics. First, revolt of Prince Chain Singh. Second, Bundela revolt. Third, first struggle of independence in 1857 in Madhya Pradesh. Fourth, main freedom fighters. Fifth, Veerangana Rani Avanti Bai. So now let us start the first topic. Revolt of Prince Chain Singh. First struggle for independence in 1857 paved the way of national movement in Madhya Pradesh. Some of the rules in Madhya Pradesh also opposed the British even before 1857. Out of these, two uprisings are worth mentioning. 1857 की फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ने मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट का पैसेज दिया। क्या दिया? नेशनल मूवमेंट का पैसेज दिया। और मध्य प्रदेश के कुछ रूलर्स ने 1857 के पहले भी ब्रिटिश रूल को अपोज किया था। इसके टू अपराइजिंग को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह। रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह क्या था? प्रिंस चैन सिंह ऑफ नरसिंहगढ़ वाज इंसल्टेड बाय पॉलिटिकल एजेंट मैडो ऑफ सियोर कंटोनमेंट। हैंस चैन सिंह स्टार्टेड agitation against the British in 1824. There was a fierce battle between Chain Singh and the British on a spot which is presently known as Tehsil Chowraha. Chain Singh and handful of brave soldiers sacrificed their lives while fighting with British soldiers in Siour's Dashara Bagh. प्रिंस चैन सिंह को ऑफ नरसिंहगढ़ को पॉलिटिकल एजेंट मैडोक ऑफ सियोर कैंटनमेंट ने इंसल्ट किया था। इसलिए चैन सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट किया। 1824 में चैन सिंह और ब्रिटिश के बीच बैटल हुआ। युद्ध की जगह को आज तहसील चौराहा कहते हैं। चैन सिंह और उनके कुछ जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश से फाइट के दौरान अपनी लिव्स को सैक्रिफाइस किया और यह सियोर के दशहरा बाग में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बुंदेला रिवोल्ट। बुंदेला रिवोल्ट क्या था? इन द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश सेकेंड फ्लेम ऑफ रिवोल्ट फ्लिक्ड इन 1842 when in Narmada Sagar region of Bundelkhand. Bundela Rajput, Gond and Lodhi rulers and landlords revolted against the British and fought against the British rule. Hid Sagar of Hirapur, Raja Pandit of Jaipur, Rani Bansi Singh of Chirongana and Diwan Bundel of Giron were heroes of his agitation, but because of lack of unity and power of British army, the revolt could not succeed. मध्य प्रदेश में सेकेंड रिवोल्ट की जो फायर हुई वो कब हुई? 1840 से 1842 में फैली, जब नर्मदा सागर रीजन ऑफ बुंदेलखंड में बुंदेला राजपूत, गोंड और लोधी रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। इसमें कई सारे जो राजा थे वो भी इस रिवोल्ट में आए एंड लैक ऑफ यूनिटी और ब्रिटिश पावर के कारण रिवोल्ट सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी और ब्रिटिश पावर नहीं थी। इसलिए जो ये
मतलब जो युद्ध था वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 में मध्य प्रदेश। 1857 में फर्स्ट स्ट्रगल कब हुआ एंड मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे। From every part of Madhya Pradesh, fighters took part in freedom struggle. There was hardly any area where freedom fighters were not there. Everyone from almost all the area of Madhya Pradesh took part in the struggle. Only because of these people that we are breathing in free atmosphere. Although freedom fighters did not confirm themselves to a specific area, they considered the nation above everything. The freedom fighters described here as related to Madhya Pradesh in one way or the other. Central character of struggle for freedom of 1857 was Rani Lakshmi Bai, who belonged to Jhansi, fought her important battle in Madhya Pradesh, posed challenges to British and won the war. She captured the Gwalior with the help of Tatya Tope. When English campaign appointed Gwalior fort, she fought bravely, and on 18th June 1858 near Gwalior, she sacrificed her life in the Baba Gangadhar's Bagh to prevent her body to be touched by British. She was cremated in haystacks near the hut of Baba Gandas. British army demolished the hut. Aides lost their lives with fighting with the British army. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1857 के ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट में अपनी जो है खुशी को नाखुशी जाहिर की। इस फाइट में लोकल रूलर्स जितने भी और रूलर्स हैं मुगल्स वगैरह के अलावा कॉमन पीपल ने भी पार्ट लिया। प्रिंसली स्टेट्स की नॉन कॉपरेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफीरियर वेपन्स और अनऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट के बावजूद यह स्ट्रगल कई मंथ्स तक चला। ट्राइबल्स इन स्ट्रगल ने पूरे पार्ट में हिस्सा लिया। भील, नायक और बरवानी भी कॉमन पब्लिक के लिए फाइट किया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स की डिज़ाइन में मराठा पावर को क्रश किया गया। एमपी के कई पार्ट्स जो मराठास के रूल में थे उन्हें ब्रिटिश में कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश ने न्यू लैंड रेगुलेशन को स्टार्ट किया। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहगढ़, दमोह, सागर और नर्मदा वैली के लोगों को क्रश ट्रीटमेंट किया गया। फार्मर्स के लिए अधिक से अधिक पे करना पड़ता था, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया और ब्रिटिशर्स ने उन पर अपनी मतलब जितने भी उनके ऊपर अटैक किए गए थे। इंडिया में दूसरी जगह की तरह कई एमपी में भी कई छोटी रियासत थी। उनके रूलर्स और नवाब ब्रिटिश के फेथफुल थे, लेकिन उनके सोल्जर्स 1857 के रिवोल्ट की न्यूज़ सुनने के बाद उन्होंने फेलो सोल्जर्स की हेल्प करना चाहते थे। रिवोल्ट के मेन सेंटर्स में ग्वालियर, भोपाल और इंदौर थे। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आपको 3 टॉपिक समझाए हैं वो टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेन फ्रीडम फाइटर्स। मेन फ्रीडम फाइटर्स क्या थे? मेन फ्रीडम फाइटर्स जो थे मध्य प्रदेश के हर एक पार्ट में फाइटर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। क्या हुआ? मध्य प्रदेश का जितना भी पार्ट था उसे फ्रीडम फाइटर्स ने पार्ट लिया। 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में सेंटर में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी, उन्होंने अपने इम्पॉर्टेंट बैटल मध्य प्रदेश में फाइट किया और ब्रिटिश को चैलेंजेस किया। उन्होंने तात्या टोपे की हेल्प से ग्वालियर के फोर्ट की कैप्चर किया। जब इंग्लिश कैप्टन ह्यू ने ग्वालियर को फोर्ट को अप्रोच किया तब रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवली लड़ी और 18 जून 1858 को
ग्वालियर के निकट बाबा गंगाधर ने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया। उनकी बॉडी को ब्रिटिश से बचाने के लिए उन्हें हे स्टैक्स नियर हट ऑफ बाबा गंगाज में वहाँ पे ले गए। ब्रिटिश आर्मी ने हट को क्या क्या डिमोलिश कर दिया और उनके जो बाबा गंगाज के जो सहयोगी थे ब्रिटिश से फाइट कर उन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जो है तो जो ग्वालियर में ही मेन उनका पार्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है वीरांगना रानी अवंतीबाई। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको तात्या टोपे के बारे में समझाना चाहती हूँ। तात्या टोपे द ग्रेट फाइटर ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हैड रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर इवन आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे continued the fighting with the British for 2 years in Madhya Pradesh and other parts of India. A friend battled Tatya Tope and he was imprisoned and the latter hanged in Shivpuri. तात्या टोपे को बाद में फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे ने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर कैप्चर करने में हेल्प की थी। रानी लक्ष्मीबाई के डेथ के बाद 2 इयर्स तक उन्होंने ब्रिटिश में गोरिल्ला फाइटिंग की। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें धोखे से जेल पहुंचाने के बाद उन्हें शिवपुरी में हैंग कर दिया। तो इस तरह से तात्या टोपे की स्टोरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आती है वीरांगना रानी अवंतीबाई। वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि द क्वीन ऑफ रानी रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट आल्सो showed extraordinary love for her motherland and for bravery. Ramgarh is a small town in Mandla district in 1850. After the death of Raja Lakshman Singh, his son Bikramjit Singh was declared mentally sick and unfit to rule. British government took the reins of administration in their hands and appointed their official. The royal family was annual subsistence allowances. Rani Avantibai, who wanted to rule of education, was being strictly implemented. Rani Avantibai opposed by the British there and took the rules of administration in her hands. She contacted the Thanks and Mughals of the districts and sought their cooperation. Many Jamidars promised to lend their support. The Rani used to lead her soldiers in battlefield in soldiers' uniform in April 1858. The Britishers attacked Ramgarh. The Rani assessed her strength and vacated the fort and went into the adjoining forest. तो रानी अवंतीबाई जो थी मंडला डिस्ट्रिक्ट की क्वीन ऑफ रामगढ़ में अपनी मदरलैंड के लिए बहुत फेमस थी वो, और वे बहुत ब्रेवली लड़ी। रामगढ़ मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल टाउन है। 1850 में वहाँ के राजा लक्ष्मण सिंह की डेथ के बाद उनके सन बिक्रमजीत सिंह को मेंटली सिक डिक्लेयर किया गया और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। रॉयल फैमिली ऑफ रामगढ़ को सालाना कुछ पैसा दिया जाने लगा। रानी अवंतीबाई बहुत ही एबल और इंटेलिजेंट लेडी थी जो अपने सन के नाम से रूल करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के कारण ऐसा न कर सकी। वह ब्रिटिश ऑफिसर से लड़कर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ली। वहाँ पर जितने भी ठाकुर और भी लोग थे उन्होंने इनका सपोर्ट हासिल किया। सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहनकर ब्रिटिशर्स से फाइट की। अप्रैल 1858 में ब्रिटिशर्स ने रामगढ़ पर अटैक किया। रानी ने ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ को देखकर फोर्ट को खाली कर दिया और पास के फॉरेस्ट में चली गई। वहाँ से भी ब्रिटिशर्स पर अटैक करती रही, लेकिन एक अटैक उन पर भारी पड़ गया
जब वह ब्रिटिशर से सराउंड हो गए, तब उन्होंने अरेस्ट होने की बजाय अपनी बॉडी जो गार्ड को उन्होंने क्या किया, वहीं पर सामने रख दिया और अपनी मदरलैंड के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को जो है एंड कर दिया, मतलब वहीं पर वो सराउंड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ सिंह। राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ साई के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। Jaipur roles in the freedom struggle of 1857 is also worth mentioning. The descent of Rani Durgavati and one of members of Gond royal family, Raja Shankar Sai, his and son Raghunath Sai, sacrifice is also memorable. They were picked up their leaders by the local soldiers and Thakurs to fight against the Britishers. Unfortunately, their plan lacked before an implementation. As the return of British arrested them and were taken to residency. The Britishers post that they are being tried in court and before a big crowd. Both the father and the son were shot dead on 18 September 1857. They were from Jabalpur. ये जबलपुर से थे राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। They were and one of the members of the Ganga royal family. They were shot dead by Britishers on 18 September 1857. 1850 सितंबर में इनका डेथ हो गया। अब ठाकुर रणमात सिंह कौन थे? ठाकुर रणमात सिंह, he was a village man curry of Satna district and gave tough fight of Britishers in 1857. He was caught and hanged in 1859. इस तरह से मैंने आपको कुछ लोगों के बारे में अभी एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।